কোনো মহিলা সুরক্ষার জন্য কোনো কিছুই নাই আলিপুরদুয়ারে, কেন কোনো বাংলা পশ্চিমবাংলা কোনো জায়গাতেই কোনো কিছু নাই। আর মেন তো আমাদের এখানে দেখেন ড্রেনের কি অবস্থা, কোনো রাস্তাঘাট ড্রেন কোনোদিনও কোনো কিছু ঠিকঠাক হয় না, চারিদিকে ড্রেন নোংরা হয়ে থাকে। সামান্য হাসপাতাল, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে একটা সিটি স্ক্যান করতে গেলে বলে মেশিন খারাপ, হাসপাতালের এত অবস্থা খারাপ, পোস্টমর্টম করতে গিয়েও পোস্টমর্টম হয় না, এই হয় না সেই হয় না। একটা পেশেন্ট মারা গেছে, সেই পেশেন্টকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরে দেখে পেশেন্ট হচ্ছে জিন্দা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে হাসপাতালে কি, আজকে আমরা হাসপাতালে যাব কি করতে? হাসপাতালের আজকে কোনো কিছু ডেভেলপমেন্ট নেই। যেটার জন্যই যাই সেটার জন্যই বলে 3 মাসের জন্য। সামান্য পেট ব্যথা নিয়ে যদি হাসপাতালে ভর্তি হয় বা পেট ব্যথার জন্য বলে যে পেটের হলো আলট্রাসোনোগ্রাফি হবে, ডেট দিয়ে দেয়, আজকে 3 মাস পরে ডেট দিবে, 4 মাস পরে ডেট দিবে, তো ততদিনে তো পেশেন্ট মরেই যাবে। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। बंगाल विधानसभा की चुनावी यात्रा पर हम निकल चुके हैं और इसमें मौजूद हूं अलीपुरद्वार जिले की अलीपुरद्वार विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर जानेंगे जनता से आखिर ये आने वाले 2026 के जो बंगाल चुनाव हैं उसमें लहर किसकी दिख रही है। क्या फिर दोबारा ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर बीजेपी यहां पर अब एक नया कमाल दिखाने वाली है और बंगाल में कमल खिलाने वाली है। अलीपुरद्वार विधानसभा जब हम आ रहे थे तो हमने लोगों से बातचीत करी और कई सारी चीज़ यहाँ देखी कि कितनी सारी खामियां यहाँ पर मौजूद हैं। बात करें सड़कों की, बात करें अस्पतालों की, तो यहाँ पर नजर आई। मैं कुछ चीज़ें संक्षेप में आपको बताता हूँ और लोगों से भी फिर इसका जवाब मांगेंगे। जैसे अलीपुरद्वार जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के नाम पर किस तरीके से रिश्वत ली गई, उनके परिजनों को लूटा गया। 2024 में वादा किया गया था कि 100 बिस्तर का एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया जाएगा, यानी आईसीयू टाइप एक चीज़ बनाई जाएगी, लेकिन उसका निर्माण पूरी तरीके से अधूरा है। ड्रेनेज मरम्मत के लिए लगातार काम तो चल रहा है, पिछले 5 साल से लगातार काम चल रहा है। चिटपुट जो काम है वो भी कितने सालों से यहाँ पर अटके हुए हैं, उन पर भी यहाँ पर नज़र मारेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अस्पतालों में किस तरीके से कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। साथ ही साथ जो यहाँ पर एक बड़ी जो बंगाल सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई गई है उसमें भी 50 करोड़ का एक फर्जी घोटाला पकड़ा गया, उसके लेकर सीबीआई की जांच की गई। लगातार कई सारी चीज़ें यहाँ पर बंगाल में है। बंगाल के लोगों से ही बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से प्रशासन ममता बनर्जी का यहाँ पर चल रहा है। ठीक है देवनाथ, क्या कहेंगे, बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस तैनात है, पुलिस जागरूक है कि नहीं? কোনো মহিলা সুরক্ষার জন্য কোনো কিছুই নাই আলিপুরদুয়ারে, কেন কোনো বাংলা পশ্চিমবাংলা কোনো জায়গাতেই কোনো কিছু নাই। আর মেন তো আমাদের এখানে দেখেন ড্রেনের কি অবস্থা, কোনো রাস্তাঘাট ড্রেন কোনোদিনও কোনো কিছু ঠিকঠাক হয় না, চারিদিকে ড্রেন নোংরা হয়ে থাকে। সামান্য হাসপাতাল, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে একটা সিটি স্ক্যান করতে গেলে বলে মেশিন খারাপ, 3 মাসের জন্য মেশিন বন্ধ হয়ে থাকে। এক্স রে করতে গেলে এক্স রে খারাপ। সামান্য বাচ্চাকে নিয়ে যদি ডাক্তার দেখাতে যাই, ডাক্তারের ওষুধটা পর্যন্ত বাইরে থেকে কিনতে হয়, হাসপাতাল থেকে ওষুধ পাওয়া যায় না। তারপরে হাসপাতালের যা অবস্থা, সেখানে গিয়ে 5 মিনিট যদি কোনো বাচ্চাকে নিয়ে দাঁড়ানো হয় সেখানে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়বে। হাসপাতালের এত অবস্থা খারাপ, পোস্টমর্টম করতে গিয়েও পোস্টমর্টম হয় না, এই হয় না সেই হয় না। একটা পেশেন্ট মারা গেছে, সেই পেশেন্টকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরে দেখে পেশেন্ট হচ্ছে জিন্দা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে হাসপাতালে কি, আজকে আমরা হাসপাতালে যাব কি করতে? কিছুর জন্যই হাসপাতালে যেতে পারবো না। আর হাসপাতালের যে চেয়ারম্যান আছে আমাদের বিজেপির প্রাক্তন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, তিনি ওখানকার হয়ে ওখানে কি করছে? আজকে হাসপাতালের জন্য কিছুই করতে পারেনি। হাসপাতালের আজকে কোনো কিছু ডেভেলপমেন্ট নেই। যেটার জন্যই যাই সেটার জন্যই বলে 3 মাসের জন্য। সামান্য পেট ব্যথা নিয়ে যদি হাসপাতালে ভর্তি হয় বা পেট ব্যথার জন্য বলে যে পেটের হলো আলট্রাসোনোগ্রাফি হবে, ডেট দিয়ে দেয়, আজকে 3 মাস পরে ডেট দিবে, 4 মাস পরে ডেট দিবে, তো ততদিনে তো পেশেন্ট মরেই যাবে, তার আগে তো কিছু হবে না। अस्पताल और हर जगह काम नहीं हो रहा, কোনো কাজ হয় না হাসপাতালে। क्या नाम है आपका? मीना यादव। क्या कहेंगे, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, कुछ काम वो कर रही हैं कि नहीं? ममता बनर्जी जो कर रही है वो पब्लिक को तो सबको पता ही है। जैसे अलीपुरद्वार से मैं बोल रही हूँ, जो ड्रेन का साफ सफाई अच्छा नहीं है, रोड व्यवस्था बहुत ही ख़राब पोजीशन में है। उसके ऊपर प्रशासन ये सब देख नहीं रहे है, साफ सफाई के ज़्यादातर करने से अच्छा होता है। यही क्या देख रहे हैं, महिला सुरक्षा है बंगाल में कि नहीं? जी नहीं है। आपके यहाँ सड़कों का, अस्पतालों का काम हुआ कि नहीं? अस्पतालों को तो बात नहीं बोल सकती हूँ, बट सड़कों बहुत ख़राब पोजीशन में चल रहा है। तो क्या कर रहे हैं इस बार? फिर ममता बनर्जी आएंगी या फिर लग रहा है कि मोदी या बीजेपी की तरफ देख रहे हैं? देखा जाए कौन आ रहा है 2026 में। हम लोग तो चाहते हैं बीजेपी आके एक परिवर्तन हो। क्या उम्मीद है बीजेपी से? बीजेपी आने से सबको सही करो, सारा सड़कों का, रास्ता का, ये सब अच्छा करो, यही चाह रहे हैं हम लोग। जैसे लड़की लोग सुरक्षित रहो, औरत लोग सुरक्षित रहो, यही।
और क्या। लग रहा है इस बार बंगाल में क्या रहेगा माहौल? बंगाल में इस बार चाहते हैं हर बंगाल का आदमी का एक ही ख्वाहिश है कि डबल इंजन सरकार बने, बीजेपी की सरकार बने। जिस तरह हमारा पड़ोसी देश बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, हाँ बिहार राज्य हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य हुआ, जिस तरह डेवलप कर रहा है, जिस तरह आगे बढ़ रहा है, हम लोग भी उसी का नक्शे कदम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह अगर बीजेपी सरकार नहीं आए तो मुमकिन नहीं है, जब तक डबल सरकार नहीं आएगी वो मुमकिन नहीं है। ये सरकार इतना हम लोग का पीछे चला गया, सोच लीजिए 50 साल पीछे चले गए हम लोग। ममता बनर्जी तो कह रही हैं बहुत काम हुआ बंगाल में। कागजों कलम में ही अच्छी लग रही है दिखने में, वास्तव में कुछ नहीं है। आप एक एक घर में जाके देखिए आम आदमी को क्या मिला। हाँ, उसी को मिला जो टीएमसी का दलाली कर रहा है, जो टीएमसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसी को डेवलप हुआ है। एक एक आदमी का दो दो तीन तीन घर मिला हुआ है, जिसको वास्तव में मिलना चाहिए उसको वास्तव में कुछ मिला ही नहीं। आप सड़क देख लीजिए, जो जल मिशन का जो रोड बना हुआ है, वो रोड का पैसा कॉन्ट्रैक्टर से पूरा म्यूनसिपलिटी चेयरमैन ने खा गया। जो गैस का कनेक्शन का जो रोड टूटा था वो खा गया। उसका बारे में वो ना रोड बना रहा है ना कुछ बना रहा है। आम पब्लिक इससे बहुत परेशान होके है इस सरकार के। जितना जल्दी जाए उतनी ही भलाई है राज्य के लिए। अच्छा, हमने देखा यहाँ जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं प्रसन्नजीत, और जो टीएमसी से भी उनका जुड़ाव है, तो उन्होंने जो टेंडर है, जो ठेकेदार हैं, उनको भी धमकाया इन चीज़ों के लिए कि काम ना हो। हाँ, ये वास्तव है। ये आम पब्लिक मीडिया के थ्रू से जान भी गया है। उसका एक कॉन्ट्रैक्टर था जो भंडाफोड़ किया है। हाँ, कि ये बार जो गैस का पाइप का लाइन का काम था और पानी का काम था, उससे पैसा ले लिया है। कितना करोड़ लिया है पता नहीं, हम लोग का जितना जानने में आया है ये 10 से 14 करोड़ का पैसा लिया हुआ है। हाँ, घोटाला लिया हुआ है। इस 20 वार्ड में रास्ते में 70 करोड़ का घोटाला है इसमें कम से कम। आगे देखा जाए क्या करता। हम लोग तो कोशिश है कि जब सरकार बदले और जो वास्तव में मिलना चाहिए डेवलप, और डेवलप हम लोग देख सके आगे दिन। यहाँ पे टीएमसी नेता है मनोरंजन डे, उनके ऊपर भी खनन माफिया हो चाहे। हाँ, वो तो बहुत पहले से है, उनका ऊपर आरोप बहुत पहले से है। अभी और भी आ गया, जो बीजेपी में था टीएमसी में गया एक ही कारण से, खुद अपने आप को डेवलप कर सके। गंगा प्रसाद शर्मा हो गया, जो बीजेपी का विधायक था, जो आदमी दोनों हाथ से बीजेपी को जिताया था, सुमन कांजीलाल के नहीं, तो वो एक ही कारण से गया को डेवलप कर सके। डेवलप तो किया, खुद अपने लिए डेवलप किया। आम पब्लिक का कुछ डेवलप हुआ ही नहीं। हाँ, खुद अपना जो पहले एक छोटा गाड़ी में घूमता था, आज वो बुलेरो गाड़ी में घूम रहा है। हाँ, वो अपना शौक पूरा कर लिया। उसका जो टारगेट था वो टारगेट में चल रहा है। और अभी अंदर का बात बोलूँ तो टीएमसी का आदमी बोल रहा है सुमन कांजीलाल को किस तरह हराना है। हाँ, वो लोग भी रेडी है और हम लोग भी रेडी है और आम पब्लिक भी चाहते हैं। सुमन अलीपुरद्वार में पहला बार ऐसा हुआ जो गद्दारी किया, एक पार्टी से जीतने के बाद दूसरा पार्टी में आज तक हुआ नहीं। अलीपुरद्वार में ये इतिहास में पहला बार हुआ है कि पार्टी बदलना। तो क्या लग रहा है इस बार पार्टी बदलेगा कि बंगाल की जनता माहौल ही बदल देगा? पूरा जनता माहौल ही बदल देगा। पूरा जनता जनार्दन का ऊपर है कि वो नहीं चाह रहा कि इस तरह का सरकार बने फिर दोबारा आए। जो पाप किया है जनता को पाप से मुक्त होना चाहता है। उम्मीद है बीजेपी से? पूरा उम्मीद है। ममता बनर्जी तो कहती हैं बीजेपी है, और जो बंगाल में जो ये अमित शाह आते हैं, मोदी आते हैं, ये तो बाहर का आदमी है। नहीं, बाहर का कौन है? हमारे देश का आदमी है। बाहर कैसे बोल सकते हैं? ये हमारा हिंदुस्तान का आदमी है, कहीं भी कोई आ जा सकता है। मैं भी काम के सिलसिले में दूसरे राज्य में जाता हूँ तो हमको तो लोग कभी बोलता ही नहीं है तुम बाहर से आए हो। तब मैं अपना देश का प्रधानमंत्री गृह मंत्री को नहीं बोल सकता हूँ, संविधान का खिलाफ है, नहीं बोल सकता हूँ। क्या नाम आपका? जय कुमार। क्या कहेंगे ये सब मैंने चीज़ें जो बताई कि सड़क की हालत ठीक नहीं है, अस्पतालों की हालत ठीक नहीं है, परिजनों से पैसे वसूले जाते हैं पोस्टमार्टम के नाम पर, क्या कहेंगे? यहाँ तो परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। जब तक बीजेपी नहीं आएगा तब तक तो काम होगा ही नहीं। ममता बनर्जी कोई काम नहीं कर रही है। रोड जैसा है वैसा ही है, नाला ताला जितना है, परिवर्तन का कोई काम ही नहीं हो रहा है। यहाँ जब तक बीजेपी नहीं आएगा तब तक तो कोई यहाँ परिवर्तन का आगे स्रोत नहीं है। क्या कहेंगे यहाँ पे जो पहले विधायक थे बीजेपी से जीते थे, फिर टीएमसी में आ गए, उन्होंने ये कहा था कि मैं टीएमसी में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, तो क्या उन्होंने लोगों के लिए वो काम किया कि नहीं? वो लोगों के लिए तो काम किए नहीं। सुमन कांजीलाल जो बीजेपी से जीते हुए थे वो टीएमसी में चले गए। वो तो अपना काम ही किए, टीएमसी का ही काम किया, लेकिन कोई काम नहीं किए। बीजेपी के लिए तो कोई काम ही नहीं हुआ, टीएमसी के लिए भी काम नहीं किया, जनता के लिए कोई काम नहीं हुआ जनता के लिए। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ कितने बड़ा घोटाला हुआ 50 करोड़ का, यहाँ पर जो महिलाओं को स्कीम दी जाती है उसमें भी हम देखते हैं घोटाला हुआ। तो क्या मान रहे थे सारे घोटालों से कैसे अब बंगाल के लोग परेशान हैं?
परेशान तो है ही, जितने जो घोटाला हुआ है वो तो सब टीएमसी ही खाया है। बीजेपी जनता को मिला नहीं कुछ। मिला नहीं। किसी परिवार को मिलता सभी को, जनता को, तब तो आगे बढ़ता ना। सब टीएमसी की ही पार्टी सब खा कर अपना 2 तला 3 तला घर बनाया, आगे तो कुछ किया ही नहीं। यहाँ सड़कों की बात करें या मेडिकल की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, कैसी हालत है? हालत तो सही है हॉस्पिटल की। सड़कों की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, सड़क का डिफरेंस है। तो क्या लग रहा है इस बार ममता वापस आएंगी कि नहीं? ममता नहीं आएगा, बीजेपी आएगा। क्यों लग रहा है ममता वापस नहीं आएगी? काम ही नहीं हुआ। हाँ। बीजेपी आज टीएमसी कोई काम ही नहीं किया दीदी। बेरोजगार बहुत है, कोई नौकरी नहीं है, किसी का काम नहीं है, सब टीएमसी खा गया पैसा। ममता बनर्जी तो कह रही है बहुत विकास किया है। विकास किया, नौकरी तो नहीं दिए ना। नहीं मिला। कोई किसी तो का बंगाल के लोग बिहार जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं क्या? पास करके सब देश विदेश जा रहा है। केरला, बेंगलोर, दिल्ली सब घूम रहे हैं नौकरी करने के लिए। बंगाल में तो कोई फैक्ट्री नहीं है।